Namaste to all. I am Ashish Kumar Joshi and presenting here this video on the topic Introduction of Python. This video is especially designed for class 11th IB. So what are the different content that we will cover in this video? About the basic of Python programming, interactive and script mode working in Python, how the basic structure of program in Python, what is identifier, keywords, constant and variables. And these topics are strictly as per the syllabus of CBSE 2020-21. Now let us start the first topic, that is basics of Python programming. So what is Python programming? As you all are class 11th student and this is first time that you are reading this programming language. So Python is basically high level programming language. High level simply means which is easily understandable by the human beings. Means we can easily learn this language. This is near to the user and far from the machine. It was firstly created by Guido van Rossum and released in 1991. Basically why these programming languages are used? Basically what we want to communicate with the computer system. So to communicate with the computer system we need some kind of programming language which makes the proper syntax in which we can write the lines so that the computer understand these lines. Besides this Python, there are various programming languages available like C, C++, Java, Python. These are the some popular programming language. Besides this, there are various programming language. But out of this programming language, we will learn about Python. So why we choose Python out of these programming language? We will see in later section. So Python is inspired by two languages, ABC language and Modula 3 language. Means it is combination of these two languages. Why this name? Why this name Python? Why this name Python? So basically this name Python is uh, taken from this television show Monty Python Flying Circus. So this is not about these Python snakes. Now why we choose Python? Basically Python is a very powerful language because of its various features. What are the various features? That first is it is platform independent, means it is cross platform, means we can work in Python is various platforms like Windows, like Linux, like Apple, various means each platform we can work in, each operating system we can work in Python. So there is no foundation to work. It is free and open source, means we can easily work without any rupees to pay to work in Python, and it is open source also. Open source means open source means uh, okay. Open source means the mystery behind the Python, means how the Python is basically working, what is behind the code. We can find out the code also. So it is easy for the scientist or the beginners or the advanced users to find out the background of this Python programming language. The other feature is because it is very simple to write program in Python because of its simple syntax. Fewer lines we can write a complex program in Python. This is a very good feature. It is interpreted language because it's read the program line by line. And one more advanced thing about Python, that it is procedural as well as we can work object oriented. Because otherwise Python, suppose we talk about Java, then Java is an object oriented language. C is a procedural language. C++ is combination of procedural as well as object oriented. So Python is basically combining all of these working module of programming language. Means we can work in a procedural as well as object oriented ways. So detail what is procedural and object oriented we will see later in class 12th also. Now with this Python, because the Python is very powerful, because in Python we can develop various kind of application and software in Python. Python means almost every kind of software we can develop with Python. We can develop web development tool, we can develop machine learning applications, data analysis, scripting, game development, embedded application, desktop application. Means Python is used everywhere.
everywhere, everything we can do in Python. You can see some of the images, means like we can draw this kind of diagram, we can develop the games, we can develop the embedded applications, we can scientific computing may be there, web development may be there, means every kind of application we can develop in Python. Now how we can work in this Python, how we can work in the Python. So the standard installation of Python may be found from this www.python.org. Basically, Python is available in two versions, Python 2 point something version and Python 3 point something version. So this is in our syllabus, means we will work in Python 3 versions. So how we can download the application or the software in which we have to work. So the standard installation may be downloaded from this www.python.org, or besides this standard installation we have other various tools also, other IDE or code editor also, in which we can work with Python, like this Anaconda distribution, then PyCharm, Canopy, Thony, Visual Studio Code, Eclipse, Sublime Text, Atom, GNU Make, Vim, Spider, many more. तो इतने से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है वैसे, क्योंकि हमको जो काम करना है वो किसी एक इनमें से किसी एक में करना है, तो जिसमें हमको कन्वीनियंट लगता है उसमें हम काम कर सकते हैं आसानी से। और इसके अलावा ये सब मैंने जो आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए बताया, आप चाहे तो मोबाइल में भी पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कई सारी ऐप्स, आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पर पाइथन आप टाइप करें, पाइथन की कई सारी ऐप्स या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाएगी, जैसे PyDroid 3 उनमें से एक है। अगर एप्पल के टेबलेट में काम कर रहे हैं तब भी आपको पाइथन की कई सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहीं पर आप प्रोग्राम बना के एग्जीक्यूट करके उसको देख सकते हैं। स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन पाइथन की किस तरीके से होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। हाउ वी कैन डाउनलोड द स्टैंडर्ड पाइथन। सो सिंपली ओपन द गूगल, राइट द पाइथन, the official page of the Python will open. The official page is www.python.org. You can open this page and download the setup as per the required operating system. Like you can download the setup for the Windows, you can download the setup for the Apple. So you can download the setup. The setup will look like this. The setup is look like this, Python 3.7.4. So this is the setup downloaded for 3.7.4, otherwise the जो latest version होगा वो download होगा. So when click on this setup, you have some kind of this, then this wizard will open. Then by clicking next, you can install the Python. After installing this Python, you can go to start menu, then search Python. So now you are able to find the icon by which you can open the Python. So such kind of icon will be there. IDLE stand for Integrated Development Learning Environment, because this gives us a complete environment in which we can make the program, we can interpret the program, we can run the program. Now after clicking on this, we have such kind of prompt. This is also known as Python shell. So by this way we can download the Python standard installation and then open such kind of shell. इसके बाद जो आगे का काम है कि इसमें कैसे प्रोग्राम करेंगे, आगे क्या होगा, वो सारी चीज़ें इसके बाद में हम देखेंगे. So let's go to our PowerPoint presentation. Okay. So how these are the steps of installation that I already told you, that how you can download and install this setup. Now in Python basically we have two modes in which we can work. One mode is interactive mode and one mode is known as script mode. Interactive mode and script mode. Interactive mode is basically command by command work. तो जो शेल प्रॉम्प्ट हमारा ओपन हुआ था, अगर उसमें आप एक एक कमांड में काम कर रहे हैं, एक कमांड को देंगे फिर उसका आउटपुट आएगा, फिर कमांड को देंगे फिर उसका आउटपुट आएगा, मतलब पूरा प्रोग्राम नहीं बनाएंगे. प्रोग्राम इज सिंपली कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टेटमेंट. जब कई सारे स्टेटमेंट दिए वो एक साथ एग्जीक्यूट होकर आउटपुट हमें मिल रहा है तो वो पूरा प्रोग्राम हुआ. लेकिन इस जो इंटरेक्टिव मोड होगा उसमें वन बाय वन चलेंगे. सो इट वर्क्स लाइक ए कमांड इंटरप्रेटर. ए शेल प्रॉम्प्ट मीन्स वन बाय वन सारी कमांड एग्जीक्यूट होगी.
स्क्रिप्ट मोड में क्या होगा कि पूरा प्रोग्राम हम एक साथ बनाएंगे, फिर उसको सेव करेंगे डॉट पी वाई एक्सटेंशन में, और फिर उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, कैसे हम प्रोग्राम बना सकते हैं? तो आपने देखा होगा कि जब हमने ये आइकन ओपन किया था, यहाँ पर जब हम गए थे पाइथन, हमने जब सर्च किया था, इस तरीके का आइकन था, उस पर क्लिक किया था, तो सबसे पहले ये शेल प्रॉम्प्ट हमको नज़र आया था। तो इसमें जब आप कमांड देंगे, इसमें जैसे कोई भी कमांड देते हैं, सपोज 4+5, सो इट गिव्स अस रिजल्ट 9। ओके, साइड 10 multiply by 2. Now here multiply is used for this asterisk symbol, not x. So for computer, plus, minus, multiply and divide. So these are the symbol for doing arithmetic operation. So what I am doing? I am doing some command by command. We gives a command, then output, then command, then output. Command कब देना है? जब ये तीन जो ग्रेटर देन के ब्रेसेस हमें नजर आएंगे। तो व्हाट इज दिस? जो शेल में जब आप काम कर रहे हैं, मतलब हम इंटरेक्टिव मोड पे काम कर रहे हैं, कमांड बाय कमांड दे रहे हैं। लेकिन जब आपको स्क्रिप्ट मोड पे काम करना है, पूरा प्रोग्राम बनाना है, तो क्या करेंगे? फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल करेंगे, न्यू फाइल करके यहाँ पर अपना पूरा प्रोग्राम लिख देंगे। ठीक है, जैसे अभी बाद में हम बताएंगे कि पाइथन का प्रोग्राम कैसे, जैसे a = 10, b = अब a क्या है, b क्या है, ये हम बाद में देखेंगे। प्रिंट हेलो, ये थोड़े पाइथन की स्टेटमेंट है, बाद में इनकी डिटेल हम देखेंगे कि कौन सी कमांड का क्या मतलब। पूरा प्रोग्राम आपने बना दिया। जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज सोर्स कोड। तो सोर्स कोड, द कोड विच इज रिटन बाय ए प्रोग्रामर। फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे और इसको सेव कर देंगे। ये ध्यान रखेंगे, जो पाइथन का प्रोग्राम आप बनाए, जैसे फर्स्ट नाम इसका मैंने दिया फर्स्ट, या मैं फर्स्ट इसमें ऑलरेडी सेव है, कोई भी नाम मैं इसका देता हूँ। सपोज मेरा नाम देता हूँ आशीष.py। सो जो फाइल आप बनाएंगे उसका एक्सटेंशन क्या देंगे? .py। इसको सेव कर देंगे। प्रोग्राम हमारा सेव हो गया। इसके बाद में क्या करना है? इसको हमको एग्जीक्यूट करना है, इसको मुझे रन करना है। सो रन पे यहाँ पर है रन पाइथन शेल, या फिर आप सीधा F5 दबा के भी इसको रन कर सकते हैं। तो रन मॉड्यूल F5। सो नाउ यू कैन सी द एग्जीक्यूशन, इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी, और फिर जो आउटपुट आएगा, यू कैन सी द आउटपुट इज हियर, हेलो। तो हेलो क्यों आया, कैसे आया, ये तो बाद में हम देखेंगे कि किस कोड से क्या मतलब। अभी सिंपल हम ये देख रहे हैं कि इंटरेक्टिव मोड क्या होगा और स्क्रिप्ट मोड क्या होगा। इंटरेक्टिव मोड जब कमांड बाय कमांड हम काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट मोड जब पूरे प्रोग्राम को हम अलग से .py एक्सटेंशन बना के फाइल को सेव करेंगे और फिर रन करेंगे, तो वो जो होगा वो हमारा इंटरेक्टिव मोड होगा। सो आई थिंक यू गेट इट। ओके, चलिए, तो पाइथन में हम हमारा पहला प्रोग्राम बनाते हैं। माय फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन। ओके, हाउ वी कैन मेक द सिंपल प्रोग्राम इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम विच डिस्प्ले हेलो पाइथन। हेलो पाइथन प्रिंट करना, ये सबसे पहला प्रोग्राम है। हाउ वी कैन डू दिस? सो सिंपली दिस इज आवर पाइथन शेल। ये मेरा वो प्रोग्राम था, इसको बंद कर देता हूँ। तो मुझे प्रोग्राम बनाना है। प्रिंट फाइल पे जाऊँगा, न्यू फाइल पे जाऊँगा, हेलो पाइथन प्रिंट करना है। तो पाइथन के अंदर एक स्टेटमेंट होता है प्रिंट। अब जैसा मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि पाइथन इज़ वेरी केस सेंसिटिव, अगर लोअर केस और अपर केस का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रिंट पूरा स्मॉल में है, लिखना है प्रिंट, फिर स्मॉल ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट भी जो ब्रैकेट यूज़ करना है वही ब्रैकेट यूज़ करना है। तीन तरीके के ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, then this square bracket, this curly bracket and this square bracket, but we have to use here small bracket, then use the double quotes, then hello Python, then double quotes, then this bracket close. So print is a statement, this is opening brace, this is closing brace, and what is this? This is double quotes. What is this? Double quotes. In double quotes you can write the thing that we want to print. क्वेश्चन में क्या प्रिंट करना है? हेलो प्रिंट, हेलो पाइथन प्रिंट करना है। तो हेलो पाइथन लिखा और डबल कोट्स में लिख दिया। बस इतनी सी बात थी। इसको मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा। तो इसका नाम मैंने हेलो ही डाल दिया, hello.py। इसको मैंने सेव कर दिया। इसको मैं रन कर देता हूँ, F5 दबाता हूँ या फिर यहाँ पर क्लिक करूँगा। यू कैन सी द आउटपुट हेलो पाइथन। यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे, सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो अमित। सो नाउ रन द प्रोग्राम, यू कैन फाइंड हेलो अमित। सो लाइक दिस वी कैन मेक। और पाइथन के अंदर एक और स्पेस, या तो इसको डबल कोड में भी लिख सकते हैं, या इसको अगर आप सिंगल कोड में भी लिखेंगे तब भी हमें वही आउटपुट मिलेगा। ओके, तो व्हाट इज दिस? इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रिंग। जब आप कोई भी
कैरेक्टर या वर्ड टाइप की कुछ लिखते हैं, किसी का नाम लिखते हैं, कुछ भी समथिंग लाइक कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स, तो आप सिंगल कोड या डबल कोड में उसको क्लोज करेंगे. सो लाइक दिस वी कैन मेक अ simple hello program in Python. So these are the different steps that is explained in this PPT. Hello Python, then simply save the file, then execute the file. Now something which is important in this, now what is program? I already told you that set of instructions given by the user for execution is known as program. जो आप जब Python में जो कोड लिखते हैं, जो उसमें एक एक लाइन क्या हुई, वहाँ पर एक एक इंस्ट्रक्शन हुई, तो पूरा जो वो सेट हुआ दैट इज आर प्रोग्राम. सोर्स कोड, द प्रोग्रामिंग कोड रिटन बाय अ प्रोग्रामर इज नोन एज सोर्स कोड. और पाइथन के अंदर जो .py एक्सटेंशन के अंदर जितना भी कोड लिखा जाता है दैट इज सोर्स कोड. अगर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है तो उसको पाइथन का सोर्स कोड कहेंगे, जावा में लिखा है तो उसको जावा का सोर्स कोड कहेंगे. अब वो जो सोर्स कोड होगा, मशीन उस सोर्स कोड को रन नहीं करेगी. कोई यहाँ पर हमको कोई ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो कि उस सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करे, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करे, और जो हमारी मशीन है, जो सीपीयू है, वो उसको रन कर पाए. तो वहाँ पर क्या होगा, एक इंटरप्रेटर होगा. सो पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर यूज़ होता है जो कि आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. और पूरे इंटरप्रेटर का मतलब ये कि आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करेगा. तो जैसे आपके प्रोग्राम में 5 लाइन है तो सबसे पहले पहली लाइन को पढ़ेगा, फिर उसका आउटपुट आएगा, फिर दूसरी लाइन को पढ़ेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, समथिंग लाइक दिस. लेकिन इंटरप्रेटर सही तरीके से मशीन कोड तब ही जनरेट कर पाएगा जब उसमें कोई एरर नहीं है. तो अगर किसी लाइन में एरर होगी तो वो एरर को बताएगा, तभी जाके उसको वो पर्टिकुलर अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएगा. सो आई थिंक यू गेट दिस टर्म क्लियर दैट व्हाट इज प्रोग्राम, सोर्स कोड एंड देन मशीन कोड. सो लाइक दिस. तो अभी तक हमने देख लिया कि सिंपल पाइथन का प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे. पाइथन के प्रोग्राम में बेसिकली क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे होती है. सो लेट्स सी द व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम. सो यू कैन सी हियर दैट दिस इज अ सिंपल पाइथन प्रोग्राम. हालांकि इसमें कई सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होगी. जैसे ये देखिए, अगर कोई पाइथन में ये पूरा सोर्स कोड है, अगर किसी लाइन के आगे आप ऐसे हैश का सिंबल लगा देते हैं तो वो पूरी लाइन रेड कलर में हो जाती है. और उसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर उस लाइन को जो इंटरप्रेटर है वो रीड नहीं करेगा, मतलब उस लाइन का प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से कोई मतलब नहीं है. वो सिर्फ आप अपने समझने के लिए, प्रोग्राम को मोर अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए उस लाइन को यूज़ कर रहे हैं. दीज आर ऑल्सो नोन एज कमेंट्स. तो ये हैश से जो भी चालू हो रहा है ये पूरे क्या है, हमारे कमेंट्स हैं. अगर कोई भी फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन आपको बनाना है तो डेफ कीवर्ड से ये स्टार्ट होगा. और देखिए पाइथन के अंदर एक और चीज़ स्पेशल है कि अलाइनमेंट. जैसे डेफ हेलो लिखा, फिर देखो प्रिंट थोड़ा सा इसके डेफ के इधर की तरफ लिखा हुआ है, राइट तरफ शिफ्टेड है. दिस इज नोन एज आइडेंटेशन. व्हाट इज दिस? दिस इज आइडेंटेशन. जैसे यहाँ पर भी आप प्रिंट को देखिए तो ये भी आइडेंट हो रहा है, यहाँ पर ये भी आइडेंट हो रहा है. तो अगर आप इसको यहाँ की जगह अगर यहाँ भी लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा. तो अगर जैसे ये प्रिंट स्टेटमेंट इस हेलो के अंदर है तो इसको थोड़ा सा अंदर लिखना है, ये प्रिंट स्टेटमेंट इस इफ के अंदर है तो इसको थोड़ा अंदर लिखना है. तो आइडेंटिटेशन का पूरा ध्यान रखेंगे. बाकी जो सिंपल लाइन्स है जैसे a=15, b=20, ये यहाँ पर वेरिएबल बनाया, फिर a प्लस बी को प्रिंट कर रहे हैं. सो इन सबको क्या कहेंगे हम? स्टेटमेंट्स कहेंगे. ब्लॉक, जैसे इफ स्टेटमेंट चालू हुआ उसके अंदर ये स्टेटमेंट है, मतलब ये पूरा एक ब्लॉक हुआ, ये पूरा एक ब्लॉक हुआ. ओके. जो हेलो ऊपर फंक्शन बनाया उसकी यहाँ पर कॉलिंग की है. ये बाद में आपकी डिटेल में चैप्टर आएंगे कि फंक्शन कैसे बनाया जाता है और फिर उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है. सो दीज आर द सिंपल वेरियस कंपोनेंट दैट मे अपीयर इन अ पाइथन प्रोग्राम like expression. These are known as expression. A plus b means any statement that is doing something, giving you some kind of result, that is your expression. Statement are simply which are assigning something, printing something. Comments start with hash, function start with def. These are the block and indentation that I told you. So these are the first 3 topic. In the next video we will see about different Python tokens that are needed to make a program. So, अभी तक हमने प्रोग्राम बनाया लेकिन उसके अंदर ज़्यादा कुछ काम किया नहीं है. तो उस प्रोग्राम के अंदर क्या आएगा, किस तरीके से काम करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.